Assalamu alaikum. Today we will learn the poem from a textbook, that is Be the Best. First I will read the poem and after that I will explain it. Be the best. Be the best. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley. But be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a bush, be a bit of the grass. Some highway happier make. If you are a muskie, then just be a bass. But the liveliest bass in the lake. We can't all be captains. We have got to be crew. There is something for all of us here. There is big work to do and there is lesser to do, and the task you must do is the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best whatever you are. Here is the whole poem. Now I will explain you this poem. We will start with the summary. This poem is written by Douglas Malloch. The central idea of the poem is whatever you do in your life, it should be your best. The poet continuously tells us to be the best in whatever we can be. We must never be ashamed of whatever we are. हम जो हैं उस बात पर कभी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए. हम जो भी काम करें वो हमारा बेस्ट होना चाहिए. In this world, each and every job has equal importance. The way of preventing it is to be the best in that job. यानी हमको अपना काम बेहतर से बेहतरीन करके दिखाना है, भले वो काम बड़ा हो, इम्पॉर्टेंट हो या ना हो. Now I will explain you this poem stanza by stanza. The first stanza is, be the best if you can't be a pine on the top of the hill, but a scrub in the valley. But be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. In this stanza, poet is comparing different things just to tell you that whoever you are, don't underestimate it. Yourself, be the best whatever you are. इस बंद में शायर कहता है कि आपको पाइन ट्री बनना होगा जो पहाड़ के ऊंचाई पर होती है. पाइन ट्री जो आपको यह तस्वीर दिखाई दे रही है, ये पहाड़ की ऊंचाई पर पाई जा रही है, वो बनना चाहिए. लेकिन अगर आप नहीं बनते हो, कोई बात नहीं, आपको उदास नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है. आप उसकी जगह स्क्रब बन सकते हो. लेकिन आपको एक ऐसा स्क्रब बनना होगा जो रिल के पास हो. रिल भी देखिए, रिल बोलते हैं, रिल के पास हो और उसके आसपास की ज़मीन को बहुत ही खूबसूरत बना दे, ऐसा स्क्रब. आगे शायर कहता है कि आपको ट्री बनना है, लेकिन अगर आप ट्री नहीं बन सकते हो, कोई बात नहीं, आप बुश बन जाओ. बुश जो है छोटे पौधों को कहा जाता है, झाड़ियों को, लेकिन वो बुश कहाँ होना चाहिए? वैली में, जिसकी वजह से वो वैली जो है वो खूबसूरत बन जाती है. If you can't be a bush, be a bit of the grass and some highway happier make. If you are a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. Now, in this stanza also, poet is telling you that if it is not possible to become bush, no matter, it's okay. Don't lose your heart. Be a bit of grass and make the people happy who passes by the highway. पिछले स्टैंजा में शायर आपसे कह रहे थे कि आप बुश बन जाओ, ट्री नहीं बन सकते हो. तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप बुश भी नहीं बन सकते हो, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना है. अल्लाह ने हमको हिम्मत हार कर बैठने के लिए नहीं बनाया है. आप घास का टुकड़ा ही बन जाइए, एक घास बन जाइए, ठीक है. और वहाँ से गुज़रने वाले, उस हाईवे पे से गुज़रने वालों के चेहरे पर खुशी का बाज़ बनिए, ठीक है. Now the poet moves further by telling you that if you can't become musky,
हियर यू कैन सी मस्की, ये एक फ़िश है, अगर ये बड़ी सी फ़िश है बहुत बड़ी साइज़ की, अगर आप ये नहीं बन सकते हो नो प्रॉब्लम, ठीक है। इट्स अ बिग फिश एंड इट इज़ वेरी प्रीशियस, महंगी होती है, हर जगह दस्तयाब नहीं होती है, जल्दी मिलती नहीं है, तो आप ये नहीं बन सकते, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बी अ बास, आप देख सकते हो बास की तस्वीर यहाँ, ये एक छोटी सी मछली है जो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होती है। बट यू हैव टू बी द लाइवलीस्ट बास इन द लेक, सबसे खुश, चंचल, भागने दौड़ने वाली बास बनना है ताकि लोग आपको पसंद करें। वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी गॉट टू बी क्रू, there is something for all of us here, there is big work to do and there is lesser to do and the task you must do is the near. Now in this stanza, poet is trying to telling you that it is not possible for everyone to become a captain of the group, यानी हर कोई जो है ग्रुप का कैप्टन नहीं बन सकता है, ग्रुप में आप किसी न किसी को मेंबर भी बनना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट बिकम अ कैप्टन, डोंट लूज योर हार्ट, इट्स ओके, फाइन, बी अ क्रू मेंबर ऑफ दैट टीम। क्रू मीन्स सेलर्स हु वर्क ऑन शिप, शिप पर काम करने वालों को बोलते हैं। So everyone in this world have something or other to do, so whatever comes to you, whether it is big or small, you have to do your work with good intention and do your best. जो भी काम आपके सामने आते हैं, आपको वो काम पूरी ईमानदारी के साथ करने चाहिए, भले वो काम छोटा हो या बड़ा हो। आपको हर काम एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये नहीं कि बड़ा काम है तो वो पहले कर रहे हैं, छोटा काम है उसको छोड़ दिया, नहीं। उस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, भले ही वो छोटा हो, लेसर और बिग, लेकिन आपको वो इम्पॉर्टेंट काम है वो पहले करना पड़ेगा, बड़े कामों को आप बाद में भी कर सकते हैं वक्त आने पर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट वन। इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल, if you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail, be the best of whatever you are. Now here poet is given the example of highway. Highway एक रोड को कहते हैं, बड़ा सा रोड होता है। देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हर एक को अपनी ज़िंदगी में बड़ा बनना है। We always want to become the most important person. If it is possible, excellent, no problem. But if you can't, अगर आप नहीं बन पाए तो simple, become a trail. Do you know the meaning of trail? Trail means पगडंडी। आप यहाँ देख सकते हो, पगडंडी को कहते हैं ट्रेल। आप हाईवे बनो या ट्रेल बनो, दोनों का मकसद होता है जो मुसाफिर हैं उनको उनकी मंजिल पर पहुंचाना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप हाईवे बन रहे हो, बड़े हो, इम्पॉर्टेंट हो, या एक छोटी सी पगडंडी हो, आप अपना काम पूरा करें। अब शायर कहता है कि आप सूरज अगर नहीं बन सकते हो तो सितारा बनो, स्टार बनो, दोनों चमकते हैं, ठीक है। भले ही सितारे की, स्टार की रोशनी कम होती है, लेकिन अंधेरे में उसके ज़रिए भी रोशनी हासिल की जा सकती है। अगर आपके हौसले बुलंद हो तो फिर आप सूरज बने या सितारा, दोनों ही एक जैसे हैं। सो विनिंग और लूजिंग डोंट डिपेंड ऑन इट्स साइज, सो बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope all of you understood the poem very well. Now we will conclude here, and in the next lecture we will go through the question answers and workshop.